Okay guys, now we will discuss about the spline curve. Okay, so basically in the previous lecture I have told you about some curves, that is Bezier curves and B-spline curves, uh, that you need to answer in your university examination. Basically these are the examples of spline curves. So before studying them, we must understand the concept of spline curve. What is a spline curve? How do we present it? How many types? What is the idea of spline curve? So we must cover that before going before moving on. Okay. So this is the definition of a spline curve. In computer graphics, the term spline curve refers to any composite curve formed with polynomial sections satisfying specified boundary condition at the section endpoint. So the meaning of the spline curve is, if you look here, this is the example of a spline curve. So what is the definition saying? That it refers to any composite curve. So the meaning of composite is that spline curves are made up of subsection. That means it is also a piecewise curve. Okay, so there are subsections that are composed to form an entire spline curves with polynomial sections. So basically these sections are created using some polynomial equation satisfying a specified boundary condition. So boundary condition, basically there is another topic such as continuity. Okay, so we will discuss it later. Boundary condition, for now you can understand that boundary condition means that after first subsection, at the end of the first subsection, at the start of the second section, how smooth this curve will look, it depends upon the boundary condition. Okay, so we will discuss it later. So that is the definition of computer graph, and that is the definition of a spline curve. बेसिकली जो आइडिया था आपके स्प्लाइन कर्व्स का, वो आया था ऐसे दैट इन एंशिएंट टाइम देयर यूज्ड टू बी अ ट्री, द नेम ऑफ द ट्री वाज बालसा. तो उस ट्री की जो वुड्स होती थी दैट वाज वेरी फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा थिन होती थी, पेपर थिन होती थी. तो उसकी एक स्ट्रिप को लेकर के एक लकड़ी के वुडन बोर्ड पर पीपल यूज टू यूज दैट स्ट्रिप to draw the outlines of the shapes. So basically आप ऐसा इमेजिन करिए कि इस टाइप का ना, it used to look like a string, जैसे रस्सी नहीं होती, तो उतनी पतली एक स्ट्रिप होती थी. उस स्ट्रिप को बोर्ड पे रखते थे and they used to place baits over that particular strip. Okay, so let's imagine that this is that strip, that thin strip of balsa tree, and these points are weights, actual weights. Okay, so what used to happen that ये जो weights होते थे इनको लोग एडजस्ट करके, जैसे अभी आप इस पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट कर दोगे तो इस कर्व की शेप चेंज हो जाएगी. सो by changing the weights, by adjusting the weights, you can control and change the shape of this curve. Okay, so the idea of spline curve comes from that. जो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में पैकेज यूज होता है कर्व्स बनाने के लिए, वो आपके इस स्प्लाइन के कंसेप्ट को यूज करते हुए थे. तो इसकी खासियत ये थी स्प्लाइन कर्व की कि विद दीज कर्व्स जो हम अपने कर्व की जो शेप होती थी उसको ज्यादा कंट्रोल कर पाते थे. अब कंट्रोल कैसे कर पाते थे कि ये हमारे जितने भी पॉइंट्स होते थे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कर्व जो है वो पॉइंट से मिलकर बन रहा होगा, ठीक है ना. सो बेसिकली इन स्प्लाइन कर्व दीज पॉइंट्स आर नोन एज कंट्रोल पॉइंट्स. और इन पॉइंट्स को अगर आप एडजस्ट करोगे, ठीक है, आगे या पीछे इनकी पोजीशन एडजस्ट करोगे, तो यू कैन हैव अ कंट्रोल्ड कर्व और किसी भी शेप का आप कर्व बना सकते.
ठीक है ना। तो स्प्लाइन कर्व में इन पर सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स। अब हम इन्हें जनरल पॉइंट्स नहीं कहेंगे, वी विल एड्रेस इट एज कंट्रोल। अब देयर इज क्लासिफिकेशन ऑन स्प्लाइन कर्व। जैसे मैंने आपको बताया बीजियर कर्व और बी स्प्लाइन कर्व, वो तो टाइप्स हो गए, बट इन जनरल स्प्लाइन कर्व्स जो होता है उसकी जो नेचर होती है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन क्लासिफाई इट इन two types of curve: interpolated spline curve and approximated spline curve. Okay, so before रीडिंग द डेफिनेशन मैं आपको पहले बता ही देती हूँ कि क्या होता है। इंटरपोलेशन कर्व होता है कि यू आर गिवन सम कंट्रोल पॉइंट्स, सो वी आर गिवन 1 2 3 4 पॉइंट्स। अगर हमको एक ऐसा कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि इन सारे पॉइंट्स से होके गुजरता है, दैट मीन्स इफ एवरी कंट्रोल पॉइंट्स लाइज ओवर द कर्व, each and every points lies over the curve, then that curve is said to be interpolated, or this process is known as interpolation, or the curve is known as interpolated spline curve. Another example is this: there are 4 control points, so 1 2 3 4. Now you can add these points like this also, or you would have connected it like this also. Okay, so can you see that you can change the shape of these curves by adjusting these control points? But the concept of interpolation is that if your curve is going through every control point, that means all the control points are lying exactly over the curve, then the curve is said to be an interpolated spline curve. So this is written here. We specify a spline curve by giving a set of coordinate positions called control points. See, आपको अगर कर्व बनाने को मिलेगा तो आपको बेसिकली ये आपको कंट्रोल पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको कंट्रोल पॉइंट्स गिवन होंगे, किसी भी टाइप का स्प्लाइन कर्व अगर बनाना होगा आपको, ठीक है, तो यू विल बी गिवन अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पोजीशन, इनकी अपनी xy पोजीशन होगी जिनको हम कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं, व्हिच इंडिकेट्स द जनरल शेप ऑफ कर्व। ओके, these control points are then fitted with piecewise continuous parametric polynomial function. यहाँ पे 4 वर्ड यूज हो रहे हैं: piecewise continuous parametric polynomial function in one of the two. बेसिकली हमें पहले पॉइंट्स मिलते हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू द इंटरपोलेशन प्रोसेस और एप्रोक्सीमेशन प्रोसेस हम एक ऐसा कर्व तैयार करते हैं जो कि इन कंट्रोल पॉइंट पे बेस्ट फिटेड होता है। और वो करने के लिए वी यूज पीसवाइज कंटिन्यूअस पैरामीट्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ये अभी हमें पढ़ना है। पीसवाइज मैंने आपको बता दिया कि इस एक एक सबसेक्शन को हम बनाते जाएंगे, इसलिए हम पीसवाइज कह रहे हैं। कंटिन्यूअस बिकॉज अभी मैंने आपको कंटिन्यूटी कंडीशन नहीं बताई है। कंटिन्यूअस का मतलब है क्योंकि ये सबसेक्शंस है और हम इनको जब अटैच करेंगे तो एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन का जो जॉइनिंग पॉइंट होता है वो कितना स्मूथ होगा वो उससे पता चलेगा। पैरामीट्रिक पॉलिनोमियल, पैरामीट्रिक हमारे कर्व्स जो होते हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखे जाते हैं। पॉलिनोमियल बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि हमें लीनियर नहीं चाहिए, हमें डिग्री थोड़ी हायर चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस वर्ड पीसवाइज कंटिन्यूअस पैरामीट्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन इन वन ऑफ द टू केस, इंटरपोलेशन। अब ये तो ऊपर जो था वो था स्प्लाइन को डिस्कस करने के लिए। इंटरपोलेशन का क्या मतलब है? When polynomial sections are fitted so that curve passes through each control point, then the resulting curve is said to be interpolated spline curve. Exactly what is said. When all the polynomial section, that means the entire curve, is created such that the curve passes through each control point, then the resulting curve is said to be interpolated spline curve. Okay. नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन में आप देख लीजिए, वन सेकेंड। approximation. Okay, so in this example there are 10 or 11 control points
एंड ये मैंने सिर्फ इसकी एक लीनियर बाउंड्री बना दी है। इसको ये जो बाहर बना हुआ है ना, इसको हम कहते हैं कंट्रोल पॉलीगन। मतलब बेसिकली आपने जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं उससे मिलाकर आपने कोई एक पॉलीगन बना दिया, तो उसको कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। ये हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं सो दैट हम अप्रोक्सीमेट कर पाए अपने कर्व को। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन का सिंपली मतलब होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी that each and every control point lies over the curve. ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कर्व हैज टू पास थ्रू एवरी कंट्रोल पॉइंट। सो इट कैन पास थ्रू 1 or 2 or 3 or more कंट्रोल पॉइंट्स, बट एग्जैक्टली पहला और एंड तो बिल्कुल पास करेगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई विल टेल यू दैट। ठीक है, कि पहला और लास्ट पे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, बट ये समझ लीजिए आप कि सारे कंट्रोल पॉइंट्स जो होंगे, यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सारे कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं वो आपकी एग्जैक्टली लाई कर रहे हो कर्व के ऊपर। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा ही से अप्रोक्सीमेट किया, मतलब ये इस हर एक पॉइंट के आस पास से गुजर रहा है। जैसे और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल है, तो देर आर 1 2 3 4 5 कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 तो आपके मिल रहे हैं और 2 को हमने छोड़ दिया। तो ये अप्रोक्सीमेशन है, यानी कि एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा कंट्रोल पॉइंट्स को, पर अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि थोड़ा आसपास। ठीक है ना, सो एग्जैक्टली कवर नहीं कर रहा कंट्रोल पॉइंट्स को, बट जो शेप एक्सपेक्टेड है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दीज कंट्रोल पॉइंट्स, द कर्व will take that particular shape. Okay, so that is called approximation. The definition is when polynomial function is so fitted. पॉलिनोमियल फंक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक सेक्शन को जो हम ये डिजाइन कर रहे हैं ना, ये किसी ना किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। When polynomial function is so fitted that without necessarily passing through any of the control points, it approximate the shape of the control polygon. यानी कि ये जो बाहर हम बना रहे हैं ना, एग्जैक्टली ये शेप तो नहीं आएगा, पर हम अप्रोक्सीमेटली इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। और आइडिया हमारा ये है कि द कर्व डजंट हैव टू पास थ्रू एवरी control point. Okay, the resulting curve is said to have approximated the set of control points. Okay, that's about spline curve. So this is basic to generalization. Now the last point. लास्ट पॉइंट और आप समझ लीजिए, इक्वेशन ऑफ स्प्लाइन कर्व। अब देखिए, जो आपको 2 पढ़ने हैं या बेसिकली 3 होते हैं स्प्लाइन कर्व। एक आपका बीजियर स्प्लाइन कर्व, एक बी स्प्लाइन कर्व और तीसरा होता है हर्माइट्स स्प्लाइन कर्व। ये तीनों जो है ना टाइप्स होते हैं, जो कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है स्प्लाइन की, जो कि मैंने आपको बता दी कि कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं इसमें, और इन कंट्रोल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम अपना जो कर्व है वो क्रिएट करते हैं। अब इनमें से कुछ कर्व ऐसे होंगे जो कि इंटरपोलेशन को फॉलो करते होंगे, कुछ कर्व ऐसे होंगे जो अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हर एक कर्व के लिए हम क्या इक्वेशन देने वाले हैं, जो बात हो रही थी पीस वाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन की, जो बात हो रही पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात हो रही थी। सो हर एक स्प्लाइन कर्व की ना एक जनरल इक्वेशन ये बनेगी। सो क्यू यू यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा है किसके लिए, कर्व के लिए। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एवरी स्प्लाइन कर्व। मतलब आपको बीजियर कर्व के लिए भी मिलेगा पी आई बी आई एन। अब यहाँ पर बी आई एन की जो वैल्यू होगी ना, दैट वुड बी डिफरेंट फॉर बीजियर कर्व एंड बी स्प्लाइन कर्व एंड हर्माइट कर्व्स। सो बेसिकली इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी वैसे हम जब पढ़ेंगे बीजियर कर्व और बी स्प्लाइन कर्व तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी अगर मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना चाहूँ कि स्प्लाइन कर्व की जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ पी आई मल्टीप्लाइड बाई बी आई एन, वेयर पी आई इज द पोजिशन वेक्टर। बेसिकली पी जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके कंट्रोल पॉइंट्स को। ओके, एंड बी आई एन, इस बी आई एन को हम कहते हैं बेसिस फंक्शन या आगे जाके ब्लेंडिंग फंक्शन। सो दिस ब्लेंडिंग फंक्शन इज डिफरेंट फॉर different types of curve, whether we are dealing with the Bezier curve or we are dealing with the B-spline curve or the Hermite curve. The BIN would be different
for every other curve. Okay, so BIN is known as basis function. So जो भी आप कर्व बनाने वाले हैं वो आपका, क्योंकि पीस वाइज है, तो पीस वाइज का मतलब है कि पहले आप एक सेक्शन बनाओगे 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, इस तरीके से सेक्शन आप क्रिएट करेंगे. इसीलिए हम यहाँ पर समेशन का यूज कर रहे हैं. I is equal to 0 to n. एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, स्प्लाइन कर्व में जो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो डिग्री होती है ना वो बहुत मैटर करती है कर्व के अंदर. तो कर्व के अंदर डिग्री आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है. ठीक है, अभी इस पे मैं आ रही हूँ. बेसिस फंक्शन इज डिफरेंट. हाँ, I is equal to 0 और n जो है यहाँ पर आपके कंट्रोल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हायर द डिग्री द मोर चेंजेस ऑफ डायरेक्शन द कर्व कैन, मोर चेंजेस ऑफ डायरेक्शन द कर्व कैन है. Not included that. Okay, I haven't included that particular point, but let me tell you कि होता क्या है कि ये जो बात जब डिग्री की हम कर रहे हैं और कंट्रोल पॉइंट्स की कर रहे हैं, तो एक बात और आप समझ लीजिए कि कोई भी कर्व की डिग्री क्या होती है. If there are n control points given, then the degree of the curve would be n-1. ये आपको याद रखना है. Let's suppose आपको 5 कंट्रोल पॉइंट गिवन होंगे, तो उस कर्व की जो डिग्री होगी वो होगी 4. और कर्व की डिग्री का मतलब है दैट कर्व वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4. ठीक है, ऐसे अगर 4 है तो उसकी डिग्री हो जाएगी 3. तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री विल बी 3. सो दिस थिंग्स नीड टू बी रिमेम्बर्ड that if there is n control points, the degree of the curve would be n-1. अब इससे ये एक बात यहाँ पर लिखी गई है कि जितनी ज्यादा डिग्री हायर होती है, ठीक है, उतना ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. ऑफ कोर्स जितने ज्यादा कंट्रोल पॉइंट होंगे आप उतने ही ज्यादा शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने कर्व को डायरेक्शन दे सकते हैं. बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट थिंग. द प्रॉब्लम इज, हम अभी जो भी कर्व पढ़ेंगे ना उसमें यूजुअली जो डिग्री होगी वो आइदर 3 या 4 होगी. ठीक है, क्यों होगी? इसका रीजन ये है कि द कंसेप्ट सेज दैट द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स वी आर गिवन, देन द डिग्री ऑफ द कर्व वुड बी n-1. तो लेट्स सपोज आपको गिवन है 15 कंट्रोल पॉइंट्स. तो आप एक ऐसा कर्व बना सकते हैं जिसकी डिग्री जो होगी वो 14 होगी. बट आप सोचिए उसका पॉलिनोमियल फंक्शन कितना बड़ा हो जाएगा, यानी उसका जो ये वाला इक्वेशन बनेगा pi मल्टीप्लाइड बाय bin. तो आपको bin का एक पॉलिनोमियल फंक्शन देना होगा, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई. सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम विद यूजिंग हायर डिग्री. और हायर डिग्री का मतलब होता है, हायर डिग्री मतलब डिग्री इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द कंट्रोल पॉइंट्स. जितने कंट्रोल पॉइंट होंगे -1 आपकी डिग्री हो जाएगी. तो अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल पॉइंट्स यूज करके किसी ग्राफ को बना रहे हो तो उसके कंप्यूटेशन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है. ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप कम कंट्रोल पॉइंट का यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप 3 का यूज कर रहे हैं, 2 का यूज कर रहे हैं या 1 का यूज कर रहे हैं, 3 भी ठीक है, अगर आप 2 या 1 का भी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कंट्रोल पॉइंट ही 3 है या 2 है तो फिर आपका कर्व लीनियर की तरफ ज्यादा होने लगेगा. जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि थोड़ा सा कर्व के अंदर जो है स्मूथनेस भी कम होगी. ठीक है, बेंडिंग भी थोड़ी सी कम होगी. सो अगर हम बहुत ज्यादा डिग्री कम कर देते हैं कर्व की तो हमें वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा जो हमें किसी भी शेप को तैयार करने के लिए चाहिए. और अगर हमने बहुत ज्यादा पॉइंट्स रख दिए तो हमें स्ट्रक्चर तो अच्छा मिल सकता है, बट to practically it is very expensive, ठीक है, to use those many control points. So it has been concluded by the researchers that जो आपके कर्व्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं अगर उनकी डिग्री 3 या 4 हो. ठीक है, तो 3 और 4 का मतलब है कि the maximum number of control points can be 4 or 5.
कर आप ज़्यादा भी सकते हैं, बट वो आपको कंप्यूटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और कम भी करोगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये ऐसा एनालिसिस हुआ है और ऐसा कंक्लूड किया गया है कि अगर किसी कर्व की डिग्री 3 या 4 है, in that case it can very well represent different types of shapes, and ये आपका कंप्यूटेशन भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। सो यू विल गेट बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। सो यूजुअली जो आप जिन भी क्वेश्चंस के साथ भी डील करेंगे, और इनमें से जो भी कर्व्स आपके बीजियर या बी स्प्लाइन या हर्माइट, तो इनके नाम भी कुछ क्यूबिक या इस टाइप के कर्व होंगे, तो आपको बहुत ज्यादा डिग्रीज के साथ, हायर डिग्रीज के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। So that's about the introduction of spline curves. Okay. अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, वी विल स्टार्ट विद द बीजियर कर्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज बीजियर कर्व, what is the blending function for Bezier curve, what are the characteristics of Bezier curve, what are the limitations of Bezier curve, and numerical related to that, and that's very very important. We'll discuss it in next lecture. Thank you.